احرام عائشہ، اللہ کے عذاب سے کیسے بچے گا وہ، کیسے بچے گا وہ جو جہیز لے گے؟ ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولیے انشاءاللہ۔ لاگو کہ یہی جہیز لے لی بھئی، یہاں فاروقی چینل صاحب موجود ہیں ماشاءاللہ۔ دیکھیے گا میں پڑھتا ہوں، جو بھی اپنی بیوی کو ستائے گا اس کا برا حال ہوگا۔ یہاں سے سوچئے کہ ہم لوگ دان لیں گے نا انشاءاللہ۔ نوجوان ہوا تو ہاں بولے دو، اتے سیدھا سا بات بڑا اچھا کہ یہاں سے بولے جہیز نہیں لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے عذاب سے کیسے بچے گا وہ، کیسے بچے گا وہ، کیسے بچے گا وہ اللہ کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے کیسے بچے گا وہ، جینا ہے جس نے راحت آرام عائشہ، جینا ہے جس نے راحت آرام عائشہ، جب تار تار ہو گیا احرام عائشہ، جب ظالموں کے ظلم کا ہوگا وہاں حساب، ہوگا وہاں حساب۔ یہ پیغام لے کر کے اٹھئے کہ یہاں سے جب جائیں گے آج اس جلسے سے تو اپنی بیوی کو سلام کریں گے انشاءاللہ۔ اب تو انشاءاللہ زبان ہلا کر کے بولے انشاءاللہ، تاکہ اگر وہ بیچاری غصہ ہے، ناراض ہے تو آج راضی ہو جائے کہ دیکھیں میرے شوہر جلسہ سن کر کے اور مجھے سلام کر رہے ہیں۔ ایک بار سب کو بول دیں انشاءاللہ، جب ظالموں کے ظلم کا ہوگا وہاں حساب، ہوگا وہاں حساب، جب ظالموں کے ظلم کا، جب ظالموں کے ظلم کا ہوگا وہاں حساب، حیرت کرو گے دیکھ کے، حیرت کرو گے دیکھ کے، حیرت کرو گے دیکھ کے انعام عائشہ، حیرت کرو گے دیکھ کے انعام عائشہ، حیرت کرو گے دیکھ کے انعام عائشہ، جب تار تار ہو گیا احرام عائشہ۔ ہمارے فاروقی چینل صاحب اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، یہ بیچارہ اتنا بڑا دل والا ہے، بغیر پیسے کے آ جاتے ہیں اور جلسے میں کوریج کرتے ہیں۔ اور ایک چینل ہے، اس پروگرام کو آپ کل یا پرسوں سنیں گے، SR میڈیا، آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے انشاءاللہ۔ یہ مکمل نعت، یہ تقریر جتنی بھی ہو رہی ہے انشاءاللہ آپ اس کو دیکھیں گے۔ ایک بار اور سب کو بول دیجئے سبحان اللہ۔ پڑھو بزم نبی میں بیٹھ کر کے اس طرح سے چلانا یہ مشاعرہ نہیں ہے کیا دل بھائی؟ آپ مشاعروں میں جاتے ہیں اور میں بھی جاتا ہوں، لیکن آپ آتا ہے محمد کی طرح بگڑی بنانا کس کو آتا ہے، اور بتوں سے کلمہ طیب پڑھانا کس کو آتا ہے، اور اگر شوق ہو صادق سے سننے کا علاوہ 50 کے 100 کا نوٹ بڑھانا کس کو آتا ہے؟ کیا بات ہے، واہ! مولوی کا پھیپڑا ہے، اس میں بڑا دم ہوتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ نوٹ بڑھاتے جائیں گے اور یہ سناتے سناتے تھک جائے گا۔ میں کہا کرتا ہوں اکثر کہ کمن چاند ستاروں پہ ڈال سکتا ہے مولانا شمیم صاحب، کہ کمن چاند ستاروں پہ ڈال سکتا ہوں، سمندروں کو تہوں تک کھنگال سکتا ہوں، اور میرے وجود کو انچوں سے ناپنے والوں میں ہر چٹان سے دریا نکال سکتا ہوں۔ واہ واہ، ماشاءاللہ جی ربانی بھائی، اچھا یہ انصاف ہے، شمشاد کو 200 اور ادھر 100۔ میں سب یاد رکھتا ہوں،
ये रब्बानी भाई मुखिया के प्रत्याशी हैं और शमीम अख्तर साहब ये हमारे जिला पार्षद के प्रत्याशी हैं। अरे सबका इम्तिहान तो इसमें नुमान सादिक साहब आपको 500 देंगे, लेकिन शमशाद की तरह नुमान भी एक बार गा करके पढ़िए ना। अरे वो तो ठीक है, मैं जैसा सुना रहा हूँ। आदमी एक टीचर होता है, मैथ टीचर, और एक होता है उर्दू टीचर, तो सबका एक मतलब अपनी अपनी एक ये होती है। आपसे अगर मैं गाना चाहूँ, आप निजामत करके दिखा दो, जैसा मैं करके दिखाता हूँ वैसा करके दिखा दो, अब वही हो जाए। अरे बंगाल की सरजमीन पर जब गया था और शमशाद राही माइक पे खड़े होकर पढ़ रहा था, मैं वहां बैठा था, और जब लोगों ने इनाम बढ़ाना शुरू किया कि आधा इधर आधा उधर, सादिक कभी पीछे नहीं रहता है। वो इंशाअल्लाह शमशाद भाई खुद गवाह है, अभयपुर की सरजमीन गवाह है, कदम चौक की सरजमीन गवाह है, कितने नाम गिनवाऊंगा। लेकिन मैं अभी कह रहा था कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दे हम। बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दे हम। दोस्त, आज हमसे ये कहा जा रहा है कि तुम वतन के गद्दार हो, तुम वतन से मोहब्बत नहीं करते हो। अरे हमने तो अपनी खून तक इस वतन के खातिर बहाया है, हमने अपने खून को पसीने की तरह बहाया है इस वतन की हिफाजत के लिए, और तुम हमसे मोहब्बत के वतन परस्ती का सवाल करते हो। चरागू के सफर में दबदबा हो आंखियों का, तो अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। चरागू के सफर में दबदबा हो आंखियों का, तो अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। और आप कहते हैं कि हमें वतन से मोहब्बत नहीं है। अरे हम हुकूमत में बैठे लोगों से कहना चाहेंगे कि नजरों का तीर तुझ पे फेंकवा के छोड़ूंगा, नजरों का तीर तुझ पे फेंकवा के छोड़ूंगा, और सारी दुनिया को अपना बनवा के छोड़ूंगा। अरे यूं तो राजनीति का शौक नहीं मोदी जी, वक्त आया तो फिर से चाय बिचवा के छोड़ूंगा। क्या बात है, बिल्कुल जवाब नहीं ना। मुखालिफ सब भी खुश होती है, लूहा मान लेती है। मुखालिफ सब भी खुश होती है, लूहा मान लेती है। अरे नाजिम का शेर अच्छा हो तो दुनिया मान लेती है। क्या समझ रखा आपने? इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैं अक्सर कहा करता हूं, एक आदमी, एक चीज, शमशाद भाई, एक चीज, एक आदमी दिल्ली से चलता है डॉक्टर साहब, और जल्दी में वो ट्रेन का टिकट ले नहीं पाता। अगर ट्रेन पकड़ता है टिकट नहीं ले पाता है, और टिकट लेता है ट्रेन छूट जाती है। जल्दी से आया स्टेशन पर और जाके गाड़ी में बैठ गया। बिहारी आदमी बेचारा, मुरादपुर जिन्होर का बिहारी, जाके ट्रेन में जैसे ही बैठा, टीटी उसके सामने, और जब टीटी सामने आ जाए, टिकट न लिया हो, चेहरे से पता चल जाता है कि टिकट नहीं लिया, एकदम भागता रहेगा। तो एकदम देखा कि टीटी सामने, और एकदम वो जिन्होर का आदमी बिहारी बेचारा नियत मान लिया, अल्लाहु अकबर, ताकि वो टिकट चेक न कर पाए। अब वो जो टीटी था वो भी बिहार का, वो टीटी जो था वो भी बिहार का, समझ रहा था कि बिहारी नियत क्यों बांधा है। पलटी मार के बैठ गया कि जब तक तू नियत नहीं, नमाज नहीं पढ़ लेगा, टिकट नहीं चेक कर लूंगा, मैं जाऊंगा नहीं। लेकिन अगला भी बड़ा पक्का था बिहारी, उन्होंने नियत पर एक दूसरी नियत करता है, वहीं से नियत तोड़ा नहीं, वहीं से करता है कि मैं नियत करता हूं 100 रकात नमाज की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। हजरात, इंशाअल्लाह वक्त आने पर मैं अपनी पटरी पर इसी तरह आता रहूंगा। आप सब्र और सुकून का इम्तिहान देते रहे। मैंने पहले भी कहा था कि जिम्मेदारियां होती है, और इसी निजामत की वजह से आप लोगों की दुआएं हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जाना होता है। इसीलिए कि मैं तरतीब से, शमशाद भाई भी ने कहा कि जिस तरतीब से बुलाया जाता है, क्या दिल भाई, जिस तरतीब से प्रोग्राम चलना चाहिए वैसे चलने दिया जाए। मैं मुरादपुर जिन्होर
और तमाम पूर्व जवार के गांव वालों को मुबारकबादी पेश करता हूं कि आप ही 11 बज रहे हैं, आप इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे हैं। सिर्फ एक इम्तिहान आपके सामने और है कि एक चतुर्वेदी को आपको समाप्त करना है, चारों वेदों को समाप्त करना है। और जैसा कि शमशाद राही ने कहा कि पंडित, मौलवी, आलिम, फाजिल कब, कहां, कैसे, किधर मोड़ ले लेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आइए मैं चलता हूं उस चतुर्वेदी तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूं कि जो पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क हिंदुस्तान में तहलका मचा रखा है, उनके वेदों की वजह से, कुरान की वजह से और अपनी तकरीरों की वजह से। मैं सिर्फ और सिर्फ अमानुल्लाह चतुर्वेदी के बाद इंशाअल्लाह दिल खैराबादी को मैं थमाऊंगा। मैं मुकर्रिर बेबाक, खतीब बेमिसाल और नौजवानों के दिलों की धड़कन जनाब हजरत मौलाना अमानुल्लाह चतुर्वेदी से गुजारिश करूंगा कि आ जाइए, तकल्लुफ का कोई काम नहीं है, सब खास है, महफिल में कोई आम नहीं है। अरे मिल जाए कुदरत के निगाहों का सहारा मुझे, दुनिया में बदल दूं तो मेरा नाम नहीं है। और खाने खुदा यानी मस्जिद को मोहब्बत की निगाह से देखना इबादत, मस्जिद को मोहब्बत की निगाह से देखना इबादत, जलसे को मोहब्बत की निगाह से देखना और सुनना इबादत, माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखना डॉक्टर साहब इबादत, और बीवी को मोहब्बत की निगाह से देखना इबादत। क्या अब आप लोग बताइए, इबादत यानी बीवी को भी मोहब्बत की निगाह से देखना इबादत, मगर अपनी बीवी को, हाँ ये याद रखिएगा आप लोग, कहीं ऐसा ना हो कि आप इबादत करते जाएं और ताक झाक शुरू कर दें तो सैंडल से स्वागत भी हो सकता है, ये याद रखिएगा। बहरहाल मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मुफ्ती जुनैद साहब ने जो बीवी वाला मामला बोला था इसलिए मैं ये बात कह दिया मैंने, लेकिन एक बात और खास तौर से आप हजरात को मैं ये समझाना चाहूंगा कि आदमी कितना खूबसूरत क्यों न हो जाए, इतना खूबसूरत कभी नहीं होता जितना उसे फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर में दिखाया जाता है। अरे वाह! और आदमी कितना बदसूरत क्यों न हो जाए, इतना बदसूरत कभी नहीं होता जितना उसे आधार कार्ड में दिखाया जाता है। दोनों हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, इन नौजवानों से मैं थोड़ा सा दरखास्त ये करूंगा कि दोस्त आप बैठ जाएंगे ना तो जलसे का काम बन जाएगा, जलसे में बैठना सवाब हो जाएगा। नौजवानों, न जाने नौजवान अपनी जिंदगी से इतना जल्दी क्यों ऊब जाता है, न जाने नौजवान अपनी जिंदगी से क्यों ऊब जाता है। मत भागिए पश्चिम के तरफ, उधर तो सूरज भी डूब जाता है। रिश्ते तोड़ जाते हैं, पके फल पेड़ों से रिश्ते तोड़ जाते हैं। अपाहिज बाप हो जाए तो बेटे छोड़ जाते हैं। बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंसू के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं दुश्मनों के बीच भी हमेशा महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। माशाअल्लाह, माँ वो दौलत है। बहरहाल हज़रात, अब मैं माशाअल्लाह हमारे शाबान दिल खैराबादी जो स्टेज पर बैठे हैं उनके के चेहरे को और उलमाए किराम के चेहरे को देखना भी सवाब है कि नहीं। अरे मुरादपुर के अच्छे लोगों, कम से कम कभी कभी हाँ हूँ बोल दिया करो, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, यहाँ कभी कोई खामोश नहीं बैठता है। यहाँ तो प्रधानमंत्री को अपने घर में बैठे मोबाइल टाइप करता है और गाली दे डालता है, लेकिन आप यहाँ बैठ के भी नहीं कुछ बोल सकते हैं। एक मर्तबा दोनों हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब मैं आपके बीच, जहां आप जाग चुके हैं, रईस शोरा, नौजवानों के दिलों की धड़कन, क्या बात है, बुढ़ापे की आस, अरे वाह, जनाब कारी शमशाद राही साहब बंगाल,
قاری شمشاد پلیز پلیز آپ لوگ جلسے کو جلسہ بنائے رہنے دیجئے. ماشاءاللہ احرار صاحب نے 20 کے نوٹ سے نوازا ہے. مولانا اکمل صاحب تھوڑا سا آپ سے میں تھوڑا صبر سکون سے کام لیں. انشاءاللہ یہ جلسہ کامیابی کی طرف گامزن ہے. دیکھیے ہمیں سننا ہے, وقت ہمارا آگے تک ہے. میں دل بھائی کو یہاں بٹھا کے رکھا ہوں, جب تک وہ 2 گھنٹہ پڑھے گا نہیں میں اسے جانے نہیں دوں گا, یہ بات طے ہے. آپ تھوڑا سکون کے ساتھ بیٹھے. دل بھائی آپ تھوڑا بالکل بول دیں تو زیادہ اچھا رہے گا. تھوڑا سا آپ بول دیں تو انشاءاللہ پڑھیں گے آپ. جی ایک دم آپ سکون رکھیں. میری بھی کچھ ذمہ داری ہے. ناظرین جلسہ جو ہوتا ہے وہ صرف ایوں ہی نہیں کہ آپ کو دل بہلا دیا اور ختم ہو گیا. کچھ ذمہ داری ہے میرے اوپر بھی. تھوڑا اس کو آپ لوگ اگر سہیوگ نہیں کریں گے, سہیوگ کریں گے نا انشاءاللہ, دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے انشاءاللہ. اب میں قاری شمشاد راہی سے کہنا چاہوں گا کہ اندھیری رات کا منظر بدل سکو تو چلو. سبحان اللہ بولیے. کہ اندھیری رات کا منظر بدل سکو تو چلو, چراغ بن کے محفل میں جل سکو تو چلو. لباس جسم بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا, ارے مراد پور والوں کی تقدیر بدل سکو تو چلو. ایک کرسی پیچھے کر لیجئے, تھوڑی سی پیچھے کر لیجئے. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ہر جگہ تیار رہتے ہیں آپ لوگ. آئیے صدر باوقار حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر سے میں پیش کے سلام کر دیتا ہوں. السلام علیکم. ماشاءاللہ ادھر والے تو بہت چالاک ہیں. یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ادھر پھر کہیں جانے کا ارادہ بن رہا ہے آپ لوگوں کا. آئیے ہمارے ہندوستان کے بہت ہی معروف اور مشہور شاعر جو اس وقت پوری دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں, جناب دل خیر آبادی صاحب تشریف فرما ہے. لیکن آئیے ان کا بھی حکم ہے, اور آپ لوگوں کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی نظریں کیا تلاش کر رہی ہے. آئیے ہمارے مولانا نعمان صادق جس طرح سے پروگرام چلا رہے ہیں چلائیں, لیکن آئیے مجھے حکم جو ہوا ہے نعت پاک کے لیے, میں ایک نعت پاک کا ایک مطلع 2-3 شعر آپ کے حوالے کیے دیتا ہوں. پھر ایک عائشہ بہن جو ابھی سورت میں اپنی جان دے کر کے کود گئی ندی میں, اس کے حوالے سے سنیں گے انشاءاللہ. ایک بار ہاتھ اٹھا کر کے بولیے انشاءاللہ. لگتا ہے اس محفل میں ہمارے ربانی صاحب نہیں ہیں اور ہمارے انجینئر صاحب منہا صاحب نہیں ہیں, اور انشاءاللہ ہم کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے یہ چلہنا والے آپ لوگوں کو ہلا ہلا دیں گے. ایک بار چلہنا والے بول دیجئے سبحان اللہ. ہاں مجھے پتا ہے کہ ان لوگوں کے چھاتی میں پاور بہت ہے, آپ لوگوں کا ٹاور رہے یا نہ رہے. آئیے ایک مرتبہ سب کوئی درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. آپریٹر صاحب مائک ٹھیک کر دو تھوڑی سی. ہلو. اب یہاں سے ایک پیغام کہ ہم سب کوئی آج سے لے کر کے موت کی شام تک ہم لوگ نماز نہیں چھوڑیں گے. دونوں ہاتھ اٹھا کر کے بول دیجئے انشاءاللہ. آئیے میں پڑھتا ہوں. یہ فضل ہمیں اکبر سے ملا ہے, اکبر سے ملا ہے. یہ فضل ہمیں خالق اکبر سے ملا ہے, اکبر سے ملا ہے. یہ فضل ہمیں خالق اکبر سے ملا ہے, اکبر سے ملا ہے.
तो पड़ोसियों को पहले एक बार ललकार करके बोल दीजिए, वो लोग पड़ोसी लोग बैठ जाए। बोलिए तुम सर मुख से बोलियो नहीं निकलो, बार चिल्ला करके बोलिए ना उन लोग बैठने। भाई आप लोग भी बैठ जाइए ना, बैठ करके सुनेंगे तो बहुत मजा आएगा। माशाल्लाह। हाँ आइए हमारे भी भाई का एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ये फज़ल में खालिक अकबर से मिला है, अकबर से मिला है दामन इस्लाम को मिटने नहीं देंगे। एक बार हाथ उठा करके बोल दीजिए इंशाअल्लाह। नुमान सादिक साहब माइक थाम लीजिए, ये तो हमारे दूसरा अनाउंसर करवट बदल रहे हैं, जनाब मौलाना परवेज साहब रशीदी साहब। देखिएगा मौलाना मुफ्ती इजहार साहब भी हैं और न जाने कितने हमारे मौलाना मेराज साहब, सनव्वर साहब, हमारे राहिल साहब, सगीरुद्दीन साहब। आइए मैं एक शेर पढ़ता हूँ तारीख के हवाले से, जनाब दिल खैराबादी साहब आपकी दुआ चाहते हुए। जालिम के शिकंजे में भी हम कलमा पढ़ेंगे, हाथ उठा करके बोले इंशाअल्लाह। जालिम के शिकंजे में भी हम कलमा पढ़ेंगे, कलमा पढ़ेंगे। जालिम के शिकंजे में भी माशाल्लाह। ये चिल्हना वाला है क्या? लगता है चिल्हना वाला 1000 के बराबर है, ये 50 रुपया नहीं है। आप कहाँ से हैं? हो जिन्होर मुराद, यहाँ तो टक्कर चल रहा है भाई आपका। तो गांव में आपको 100 रुपया देना चाहिए। चिल्हना वाले इतने दूर से 50 रुपये और आप जिन्होर मुरादपुर वाले 50 रुपये 100 रुपये देना चाहिए। और एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जालिम के शिकंजे में भी हम कलमा पढ़ेंगे, कलमा पढ़ेंगे। नारा लगने वाला मिसरा रहा है, उमर सादिक साहब तैयार रहना। जालिम के शिकंजे में भी हम कलमा पढ़ेंगे। माशाल्लाह जी। बोचा गाड़ी से मुस्तकीम साहब माशाल्लाह, जितना मोटा ताजा है आपको तो 200 रुपया देना चाहिए था। और एक बार बोल दीजिए, देखिएगा जी। चंदेल माशाल्लाह, देखिए चंदेल वाले। लेकिन ये कल्ठिया वाले कहाँ चले गए रब्बानी साहब? भाई नाम इतना अच्छा है। जालिम के शिकंजे में भी हम कलमा पढ़ेंगे, कलमा पढ़ेंगे। ये हौसला रब्बानी, ये मुखिया उम्मीदवार रब्बानी साहब 200 रुपए से काम चलेगा, हमको तो 500 रुपए देना चाहिए था। और एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जालिम के शिकंजे में भी हम कलमा पढ़ेंगे, कलमा पढ़ेंगे। ये हौसला कुट्टी कहाँ है भाई? ये जो होगा देखा जाएगा। सर मैं पढ़ूंगा भी, लाइन पर आने दीजिए। इस तरह नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। एक बार जो दिल साहब को सुनेंगे तो दिल से नारा लगाइए, नारे तकबीर। नुमान सादिक साहब खाना खा करके क्या करने के लिए आप आए? मैं खाना भी नहीं खाया हूँ। नारा देखिए, आप जोर से लगाएंगे तो ये लोग भी लगाएंगे नारा। एक बार कड़कदार नारा लगाइए ना। और एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जालिम के शिकंजे में भी हम कलमा
आप भरपूर हिफाजत करें कि हम लोग जब तक दुनिया में रहेंगे इस्लाम को मिटने नहीं देंगे। इस्लाम के चाहने वालों एक बार हाथ उठा करके बोल दीजिए इंशाअल्लाह। इस्लाम पे मर जाएंगे मिटने नहीं देंगे। सब कोई बोलिए इंशाअल्लाह। इस्लाम पे मर जाएंगे मिटने नहीं देंगे, मिटने नहीं देंगे। दिलदार साहब है ना, वो जेब में रखना चाहते हैं कि जेब से निकालना चाहते हैं आप? जी लॉकडाउन खत्म कर दिया उसका आपने? ये लॉकडाउन में कहाँ लगाया हूँ, आप देख सकते एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इस्लाम पे मर जाएंगे मिटने नहीं देंगे। हमारे माइक वाला माइक बहुत अच्छा है, लेकिन जिस तरह से चिल्हना में बनाए थे यहाँ नहीं बना पा रहे हैं आप। माइक अगर ठीक हो जाएगा तो मैं लगता है कि 1 घंटा पढ़ दूंगा। एक बार और बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इस्लाम पे मर जाएंगे मिटने नहीं देंगे, मिटने नहीं देंगे। इस्लाम लिख देना। एक बार बोल दीजिए इंशाअल्लाह। इस्लाम पे मर जाएंगे मिटने नहीं देंगे। और अब एक नारा लगने वाला शेर, अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा हम सबों की माँ है। एक बार अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के नाम पर जितने भी नबी के चाहने वाले यहाँ बैठे एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा शेर। माँ आयशा मतलब कुछ खा के आए या भूखे आ गए हैं आप लोग? यानी मौलवी फेफड़ा निकाल के रख दे और आप जबान तक खिलाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। भाई जब अम्मा आयशा का नाम आ गया तो सबको दाएं वाले बाएं वाले आगे वाले पीछे वाले मिल करके नारा लगाना चाहिए। और इस तरह नारा लगाए कि हम सबों की जान है, हम सबों की शान है और हम सबों की माँ है। एक बार अम्मा आयशा के नाम पर नारा